बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप कि आप सब मुझे सुन पा रहे हैं। अगर आप सुन पा रहे हैं तो काइंडली चैट बॉक्स में कंफर्म कर दें। थैंक यू फॉर कंफर्मिंग। मेरा नाम मोहम्मद हुमायूं है और मैं NHN पाकिस्तान में रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर हूं। आप सबका बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें ज्वाइन किया इस वेबिनार के लिए। आज का वेबिनार जो है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग एंड डिसेमिनेशन प्रोसेस एंड इमरजेंसी रिस्पांस के टॉपिक के ऊपर है, और विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एनी काइंड ऑफ इमरजेंसी। इस वेबिनार को हमें फैसिलिटेट कर रही हैं मिस सना जुल्फ़िकार। Sana Zulfikar has a significant expertise in humanitarian coordination, with efforts mainly focusing on negotiating local civil society space in humanitarian architecture and advocacy, and advocating localization agenda on national and international platforms. She has done MSc in Communication Sciences and has served in different positions for the last 11 years at Earthquake Rehabilitation Reconstruction Authority, United Nations, National Health Emergency Response Preparedness Network, NDMA, and National Humanitarian Network. She was awarded Volunteer of the Year 2008 by the Government of Pakistan. For the last 7 years, she has worked on key positions in National Secretariat of NHN and played vital role in streamlining the network operational and strategic coordination, facilitating the development of network contingency, preparedness, advocacy, capacity building plans. On her credit, she conceived, designed, and facilitated the first digital resource center in the country and region as one knowledge management window to galvanize communication for humanitarian sector. She facilitated the development of the first national roster, sector experts roster titled Search Emergency Response Team, development of local charter of commitment derived from Charter for Change for Pakistan and a localization agenda, and introduced initiatives to capacitate females of local government and civil society as women leadership in emergency response. She has also managed and coordinated Pakistan Resilience Partnership at country level and remained communication focal point for Asian Preparedness Partnership managed by Asian Disaster Preparedness Center. Currently, she is working as program coordinator at Asian Disaster Preparedness Partnership. Thank you, Sana, for facilitating this webinar, and over to you. Assalamu alaikum. Ladies and gentlemen, thank you so very much for providing me this opportunity to have a webinar on the subject topic. I hope that I am clear to all of you. अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की वॉइस में इशू है तो प्लीज़ आप हमायों के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। मेरी आज की जो प्रेजेंटेशन है उसका लेआउट आपके सामने इस वक्त प्रेजेंट हो रहा है। हम इसमें बेसिकली हम इसको इंटरैक्टिव सेशन रखेंगे और हम कोशिश ये करेंगे कि रादर देन कि एक इंफॉर्मेशन आप तक सिर्फ पहुंचा दी जाए कि इसके जगह हम इसको केस स्टडीज के थ्रू और हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। सो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करती हूँ हमारी आज की प्रेजेंटेशन। सो व्हाई इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। सबसे पहले क्वेश्चन इस टॉपिक के ऊपर आता है कि इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट किस लिए चाहिए, उस जरूरत क्या है इसकी। आपको एक पिक्चर डिस्प्ले हो रही है यहाँ पे, और अगर आप इस पिक्चर को देख सके तो ये फिलीपींस में जो टाइफून आया था 8 नवंबर 2013, ये उसको डिपिक्ट कर रहा है। मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आप चाहते हैं कि हम इसको इंटरैक्टिव रखें तो आप चैट बॉक्स में लिख भी सकते हैं और आप हैंड रेज कर लें। हुमायूं आपको साथ साथ मौका भी देते रहेंगे ताकि हम इसको रादर देन ये वन वे कम्युनिकेशन हो, इसको हम टू वे कम्युनिकेशन करें। ये जो पिक्चर आपके सामने है ये इट्सेल्फ एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है, लेकिन देखने वाले की नजर से ये हर इंसान, हर शख्स इसको डिफरेंटली इसको प्रेजेंट करेगा। वो इसको अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं इस पिक्चर को अलग तरीके से एक्सप्लेन करूंगी, लेकिन अगर हम बाकी किसी से बात करेंगे तो वो अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप में से कोई एक या दो
आप हैंड रेज कर लें या इवन चैट बॉक्स में लिखते हैं कि वो इस पिक्चर में क्या देख रहे हैं और उनको इस पिक्चर में क्या मैसेज कन्वे हो रहा है, जिससे हमें ये अंदाजा होगा कि आपने कौन सी इंफॉर्मेशन इससे पिक की है। So even I can randomly request you, because मैं देख रही हूँ मेरे बहुत सारे साथी हैं इस वेबिनार में आज। So अगर लाइक अमानुल्लाह काकड़ हैं, अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहें तो आप प्लीज अगर इस पिक्चर को एक्सप्लेन कर दें कि इस पिक्चर में आपको क्या मैसेज मिल रहा है या क्या इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है। जी जी, इसमें ये कि एक तूफान आया है जिसकी वजह से पूरी आबादी को मुतासिर किया है, जिसमें ये दरख्त वगैरह भी मुतासिर हुए, इंसान भी मुतासिर हुए, सब कुछ जो है तबाही नजर आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, थैंक यू अमानुल्लाह साहब। अब अगर इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी तो मेरे वर्ड्स ये होंगे कि ये तूफान के बाद की सूरत हाल है, जिसमें हमने ये देखा कि किस तरीके से तूफान ने इंफ्रास्ट्रक्चर को भी और जो वहाँ पे नेचुरल जो जैसे कि दरख्त है, एनवायरनमेंट है, उसको डैमेज किया हुआ है। लेकिन साथ ही अगर आप इस पिक्चर को गौर से देखें तो कुछ लोग हैं जो अपनी मदद आपके तहत कुछ जिसे कहते हैं ना रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये बेसिकली इंफॉर्मेशन को आप किसी भी टाइप से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आपके सामने जो भी पिक्चर है, चाहे आप उस मौके पे हैं या आपको कोई राइटअप के सूरत में दी गई है या पिक्चर की सूरत में दी गई है, हर इंसान उसको डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करेगा। इसी तरीके से ये एक अगली पिक्चर है, दो पिक्चर्स हैं जिसमें हम पाकिस्तान में जो 2012 में फ्लड्स आए थे, ये उन पिक्चर्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हम अपने अपने माइंड में, आप सब भी जब इन पिक्चर्स को देख रहे होंगे तो कोई कहेगा कि बिल्कुल तबाही तबाही है, पानी ही पानी है हर तरफ। जो हमारी राइट साइड वाली पिक्चर है उसमें हम देख पा रहे हैं कि एक शख्स है जो एक बिल्डिंग में खड़ा है और वो बिल्कुल हेल्पलेस दिख रहा है, और जबकि अगर आप उस बिल्डिंग को गौर से देखें तो वो बुनियादी सेहत का मरकज है, यानी जो बेसिक हेल्थ यूनिट है वो भी पानी में गिरा हुआ है, और आप लोग वहां तक कैसे जाएंगे, और ना ही वो लोग जो उस बिल्डिंग के अंदर है वो लोगों की मदद के लिए बाहर आ सकते हैं। जबकि आप मेरी लेफ्ट साइड वाली पिक्चर जो है उसको अगर हम देखें तो वहां पे भी हमें यही दिखने में आ रहा है कि पानी ही पानी है, लेकिन एक छोटा सा टीला सा कहीं है और वहां पे कैंप लगे हुए हैं। तो हम सब इंफॉर्मेशन को किस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे और हम उसको किस तरह से एज्यूम करके आगे कन्वे करेंगे, ये इन पिक्चर से हमें ये मैसेज मिल रहा है। एक छोटी सी केस स्टडी है जी। फिलीपींस में 2012 के फ्लड, 2 women were surrounded by flood water. They called their son for help by mobile phone. The son turned to Twitter for assistance using the hashtag rescue. Authorities monitored hashtag rescue messages and saved both the women. So इससे हमें क्या मैसेज मिल रहा है कि दो खवातीन जो किसी कहीं ज़रा इलाके में फंस चुकी थी, उनको उस टाइम पे क्या कम्युनिकेशन का या इंफॉर्मेशन पहुंचाने का जरिया मिला, वो मोबाइल फोन। सो उन्होंने उस मोबाइल फोन से, क्योंकि दे डोंट नो कि किसको अप्रोच करना है, सो उन्होंने अपने बेटे को बताया कि हम फलां जगह पे हम फंसे हुए हैं और हमें किसी तरीके से मदद पहुंचाई जाए। अब बेटे ने समझदारी का मुजाहरा ये किया कि देयर आर डिफरेंट मीडियम्स, बहुत सारे तरीके हैं। आप रेस्क्यू वालों को फोन कर सकते हैं, आप जाके कहीं इंफॉर्मेशन दे सकते हैं और लोगों जो रेस्क्यू या सपोर्ट करने की वाली फैसिलिटीज है उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं, या आप सिंपल वे ये है कि आप अपनी ही जगह घर पे बैठ के आप जो हैशटैग यूज हो रहा होता है ट्विटर पे, आप उसको उसके थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, जो कि मॉनिटर हो रहा है। पाकिस्तान में अक्सर देखा जाता है हेल्पलाइंस एक्टिव हो जाती हैं। सो देयर आर डिफरेंट मीडियम। ये दिस इज, अब ये हमारे ऊपर रिलाई करता है कि हम किस मीडियम को किस तरीके से अप्रोच करेंगे और कैसे हम इमीडिएटली सपोर्ट पहुंचा सकते हैं और इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं। अब एक पिक्चर आपके सामने है, और अगर कोई चैट बॉक्स पे इसको एक्सप्लेन करना चाहे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको देख रहा है कि एक शख्स है जो बेसिकली दीवार की उस तरफ से देखना चाह रहा है और वो इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहा है, लेकिन उसने अप्रोच क्या अडॉप्ट की है आप उसको अगर गौर से देखें। बहुत सारी सीढ़ियां हैं जो नीचे पड़ी हैं जिनको उसने एक इकट्ठी एक जगह पे इकट्ठा करके उसके ऊपर खड़ा है, रादर देन ये कि वो एक सीढ़ी को इस्तेमाल करके वो आराम से भी जो दीवार की उस तरफ की इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है।
सो बेसिकली ये पिक्चर हमें ये दे रही है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं हमें उसका सही इस्तेमाल भी मालूम होना चाहिए और हम उस टाइम पे अपनी सूझबूझ से इस चीज को जज कर सकें कि जो रिसोर्सेज हैं क्या हम उनका सही इस्तेमाल करके सही जगह पे सही इंफॉर्मेशन सही टाइम पे पहुंचा रहे हैं या हम उनको वेस्ट कर रहे हैं. So basically it doesn't matter how many resources you have. If you don't know how to use them, it will never be enough. समटाइम्स आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, आपके पास कोई जरिया नहीं है, लेकिन आपने इस तरीके से आपकी जो अपनी सोच की सलाहियत है उसको इस्तेमाल करते हुए आप इंफॉर्मेशन कन्वे कर सकते हैं. और समटाइम आपके पास बेतहाशा, जैसे आजकल हमारे पास ईमेल का तरीका है, आजकल हमारे पास व्हाट्सएप है, बहुत सारे इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं, हमारे पास ये ट्विटर का इस्तेमाल हो जाता है, फेसबुक है, बहुत सारे मीडियम्स हैं, लेकिन हम किस तरीके से उनका सही इस्तेमाल करके अपने इंफॉर्मेशन जो है वो आगे कम्युनिकेट कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं. नाउ अगर यहाँ तक आप सबको कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज चैट बॉक्स पे लिख लें, हम साथ साथ उसको एड्रेस कर लेंगे. व्हाट इज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट? बेसिकली ये है क्या? यहाँ तक तो हमने ये सीखा कि इंफॉर्मेशन हर तरफ हमारे मौजूद है, हमारे पास रिसोर्सेज हैं जिनको हम यूज करके इंफॉर्मेशन मैनेज कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये है क्या? द डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ सिस्टमैटिक अप्रोच. हमें हैज़ वे में नहीं जाना होता, हमें एक सिस्टमैटिक अप्रोच अडॉप्ट करनी है ताकि हम एक रिलायबल ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आगे कम्युनिकेट कर सकें, उसको मैनेज कर सकें. और उस सिस्टमैटिक अप्रोच के लिए जो 4 की पॉइंट्स है: आइडेंटिफाई करना, कलेक्ट करना, एनालाइज करना और शेयर करना डेटा फॉर डिसीजन सपोर्ट इन ह्यूमैनिटेरियन रिस्पॉन्स. हम आमतौर पे भी देखते हैं, और ये बिल्कुल इसी तरह जैसे मीडिया का काम होता है, हम मीडिया से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं कि वो रिलायबल इंफॉर्मेशन एंड विद एविडेंसेस जो है वो प्रोवाइड करे. सिमिलरली ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर में चाहे प्रिपेयरनेस का टाइम है, चाहे रिस्पॉन्स का टाइम है, चाहे रिकवरी का टाइम है, उसमें भी हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम जो एक्यूरेट और जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन उसको आइडेंटिफाई करें, उसको कलेक्ट करें, देन उसको एनालाइज करें एंड देन हम वो डाटा या इंफॉर्मेशन फर्दर शेयर करें. उसको अपने पास रखने का कोई फायदा नहीं है. हम यहाँ पे देखेंगे जी इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट किस तरह तो होती है. एक छोटी सी एग्जांपल है, आप ये देख रहे हैं कि बहुत सारे कलरफुल यहाँ पे ब्लॉक्स पड़े हुए हैं और इसको हमने बेसिकली डाटा के साथ रिजेम्बलेंस दी है कि हमारे पास ये बहुत सारा ये डाटा, वेग डाटा मौजूद है. हम फील्ड में गए और हमें ये डाटा वहाँ पे नजर आ रहा है, लेकिन अब हमने इसको किस तरीके से इसकी प्राइमरी फाइंडिंग्स करनी है. और इसके लिए बेसिक जो चीज है वो क्वेश्चन करना है, और हमें पहले अपने आप से ये क्वेश्चन करना है कि इन जो हमें डाटा दिख रहा है इसमें बहुत ज्यादा रेड एंड येलो कलर के ब्लॉक्स मौजूद हैं, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ब्लू एंड वाइट भी दिख रहे हैं, लेकिन बहुत एज कंपेयर टू ब्लू, वाइट, रेड एंड येलो, ब्लैक, ग्रीन, ऑरेंज एंड लाइन कलर के जो ब्लॉक्स हैं वो कम दिख रहे हैं हमें. फिर हमें साथ ही जो सवालात हमारे जहन में आते हैं वो ये हैं कि रेड एंड येलो क्यों है इतने ज्यादा? क्या वो सस्ते थे? क्या वो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं? या उनकी तरफ प्रेफरेंस कस्टमर की ज्यादा है, यानी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट या नीड्स हैं वो ज्यादा वो फुलफिल कर रहे हैं. लेकिन हम इसको किस तरीके से प्रोसेस करेंगे? यानी हमने सबसे पहले उसको सॉर्ट आउट करना है. हमने तमाम जो हमारे पास अवेलेबल डाटा है हमने उसको कैटेगराइज करना है, हमने सॉर्ट आउट करना है. आपने अक्सर देखा होगा आजकल एक टेम्पलेट्स बन चुके हैं जिसमें हम बाकायदा हमने बहुत सारी सेग्रीगेशंस दी होती हैं जिसकी बेस में हम डाटा को सॉर्ट आउट कर रहे होते हैं. फिर हमने उस डाटा को अरेंज भी करना है. हम सॉर्ट आउट करने के बाद भी हम उसको एज इट इज प्रेजेंट नहीं कर सकते, ना वो स्टेक होल्डर्स के लिए फायदा रखेगा, ना ही वो हमारे लिए फायदा होगा. तो आपने बहुत सारा रॉ डाटा लिया, उसको आपने सॉर्ट आउट किया, देन आपने उसको अरेंज किया एंड देन आपने उसको विजुअली प्रेजेंट किया. अगर आप बहुत सारे लाइक 40-50 पेजेस का, 100 पेजेस का एक डॉक्यूमेंट बना के शेयर कर देंगे तो वो लोगों के लिए किसी काम का नहीं है, बिकॉज किसी के पास उस टाइम पे इतना टाइम नहीं होता कि वो इतना लेंथी डॉक्यूमेंट पढ़े. लेकिन अगर आप उसको विजुअली अट्रैक्टिव और जस्ट वन क्लिक पे रीडर को या रिस्पॉन्डेंट को समझ आ जाए कि ये बेसिकली डाटा क्या प्रेजेंट कर रहा है, आप इस तरीके से शेयर करेंगे
तो वो अगलों को के लिए भी फायदेमंद होगा, और वो उससे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके वो अपने प्रोजेक्ट्स डिजाइन कर सकते हैं, वो अफेक्टेड कम्युनिटी को सपोर्ट कर सकते हैं, फैसिलिटेट कर सकते हैं, और वो डिफरेंट अपने रिस्पांस प्लान्स बना सकते हैं। अभी हम यहाँ पे एक साइकिल देखेंगे। यही जो बातें पीछे की हैं कि उनको हमने बेसिकली, हमारे पास वो स्टेप्स क्या होते हैं। डाटा है, उसको सबसे पहले आपने कलेक्ट किया, देन आप प्रोसेस करना बहुत जरूरी है। आप ऐसे ही डाटा उठा के किसी को नहीं दे सकते, आप ना वो आपके काम का है ना वो किसी और के काम का है। आप उसको प्रोसेस करेंगे जिस तरीके से पिछली स्लाइड में मैंने पूरा आपको उसका जो मेथड है वो एक्सप्लेन किया है। उसके बाद आपने उसको इंफॉर्मेशन कैसे बनाना है, क्योंकि रॉ डाटा वो उसको इंफॉर्मेशन बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि आप उसका एनालिसिस करें, जो कि एक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, खास तौर पे ह्यूमैनिटेरियन सेक्टर के लिए। एंड कम्युनिकेशन के लिए शेयर करना है आपको। शेयरिंग के लिए मैंने आपको पहले भी बात की है कि बहुत सारे मीडियम है आजकल अवेलेबल है, जिसके पास जो मीडियम आइडेंटिफाइड मीडियम है, जो जिसको वो ऑफिशियल मीडियम करार देते हैं, उसके थ्रू वो रिलायबल डाटा शेयर कर सकते हैं, लेकिन इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी बहुत जरूरी है कि आपके पास साउंड उसकी एविडेंसेस हो, आपके पास पूरा उसका बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन और नॉलेज हो, ताकि जब आपकी शेयरिंग पे आपसे कभी कोई क्वेश्चन किया जाए तो आप उसको रिस्पॉन्स कर सकें। अदरवाइज यही होगा कि अगले के लिए भी वो इंफॉर्मेशन किसी काम की नहीं होगी, बिकॉज उसको उससे रेलेवेंट मटेरियल नहीं मिल रहा होगा, और वो आपके लिए भी नहीं होगी। ये एक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट साइकिल है जो हम आमतौर पे जिसको इजीली हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें तो कलेक्शन, आपने डाटा को कलेक्ट किया, उसके बाद आपने उसको कंपाइल किया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सॉर्ट आउट किया उसको। उसके बाद आप जो नेक्स्ट स्टेप है कि वो आपने एनालाइज करना है कि वो कंप्लीट डाटा है या नहीं है। अगर तो है तो आप फर्दर मूव करेंगे, लेकिन अगर वो आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं है और आपने, जैसे मैंने आपको फिलीपींस की उसमें एग्जांपल में आपको बताया कि उनके माइंड में आया और उन्होंने आगे से उसको कम्युनिकेट किया और लेके चले, लेकिन अगर उनके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन ना होती, बेटे को वो इंफॉर्मेशन ना दे सकते, तो ऑब्वियसली रेस्क्यूअर्स को भी सपोर्ट नहीं मिलती और वो वहां पे राइट टाइम पे नहीं पहुंच सकते थे। सो आपने एनालाइज करना है, आपके पास जो डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं उसके बेस पे आपने जज करना है कि आपके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन है और आपने आगे प्रोसेस करना है। बट अगर नहीं है तो वापस आपने स्टेप नंबर 1 पे जाना है, जो कि है कलेक्शन, और वो क्वेश्चंस जिनके आंसर्स आपको नहीं मिले इस डाटा से, आपने वो दोबारा से कलेक्ट करने हैं, उसको कंपाइल करना और एनालाइज करना है। आफ्टर एनालाइज और कंप्लीट इंफॉर्मेशन पैकेज बनाने के बाद आपने उसको फर्दर शेयर करना है फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स। बट जो चीज कॉमन है, लेकिन कॉमन बट नॉट रिकमेंडेड, कि ऐसा इंफॉर्मेशन है जो शेयर करते हुए अगर आपको स्टिल आपको ये फीलिंग है कि इसमें अभी भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो आगे फायदा देने के बजाय नुकसान पहुंचा सकती है, कियोस्क की सिचुएशन क्रिएट कर सकती है, तो आप बेहतर है कि आप एक स्टेप पीछे चले जाएं और उसको दोबारा एनालाइज करें, रादर देन कि उसको आगे फर्दर शेयर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज है कि नो इन्फॉर्मेशन इज बेटर देन रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। आजकल एक चीज कॉमन हो चुकी है, हम सब ये देख रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं, हर कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने की रेस में लगा हुआ है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि जो इन्फॉर्मेशन वो शेयर कर रहा है क्या वो रिलायबल है, वो ऑथेंटिक है, उससे कोई कियोस्क की सिचुएशन तो नहीं क्रिएट हो सकती या एक गलत मैसेज तो नहीं जा सकता, और वो बस इन्फॉर्मेशन पास ऑन किए जा रहे होते हैं। सो बेहतर है कि आपको, जब तक आप उस पर कॉन्फिडेंट नहीं है, आप इंफॉर्मेशन मत शेयर करें। इट्स बेटर कि आप देयर शुड बी नो इंफॉर्मेशन रादर देन अ रॉन्ग इंफॉर्मेशन। हम इसी को दोबारा से साइकिल को समझेंगे अगर आप इसको अभी गौर से देखें। कलेक्ट डाटा, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, नॉलेज, अप्लाई एंड एक्टिविटी देन होगी। इसको समझने के लिए हमने यहाँ पे अगेन एक छोटी सी केस स्टडी प्रेजेंट कर रही हूँ मैं आप लोगों को। हमारे पास 3000 पीपल इन कैंप ए, जहां पे 2 वाटर पंप लगे हुए हैं जो कि बेसिकली 10,000 लीटर पर डे कैंप ए को प्रोवाइड कर रहे हैं।
सो दिस इज बेसिकली अ सिचुएशन, यानी कोई भी ह्यूमैनिटेरियन एक्टर कहीं फील्ड एरिया में गया है और उसने सबसे पहले ये कलेक्ट किया इन्फॉर्मेशन कि 3000 लोग हैं कैंप ए में, जहाँ पे सिर्फ 2 वाटर पंप हैं जो कि 10,000 लीटर पर डे कैंप ए को प्रोवाइड कर रहे हैं पानी। सेकेंड स्टेप पे उसको प्रोसेस करने के बाद, ये इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के पास जो सिचुएशन हमारे सामने आती है वो ये है कि द अमाउंट ऑफ वाटर अवेलेबल इन कैंप ए इज नॉट सफिशिएंट। 3000 people exceed the capacity of Camp A, which is 2000 people. यानी कि जो कैंप ए की कैपेसिटी है वो बेसिकली 2000 लोगों के लिए, लेकिन वहाँ पे ऑलरेडी 1000 जो अफेक्टेड कम्युनिटी है वो ज़्यादा है। सो टोटल 3000 पीपल कैंप ए में इस वक्त हैं, एंड जो पानी 2 पंप से प्रोड्यूस हो रहा है वो उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर रहा। Oxfam install a water pump in 3 days. 3 दिन के अंदर Oxfam ने एक और वाटर पंप इंस्टॉल किया। जो कि 45,000 लीटर वाटर पर डे is necessary to meet the needs of the population. 1000 people have not enough space because we are over the maximum capacity of the camp. अब जब आपने उसको एक्सपीरियंस किया है प्रोसेस करने के बाद, तो आपने ये अंदाजा लगाया है कि बेसिकली वहां पे लोगों की रिक्वायरमेंट जो है वो पर डे 45,000 लीटर है। सो कहाँ 10,000 लीटर और कहाँ 45,000 लीटर, और 1000 people have not enough space because we are over the maximum capacity of the camp. Organization working in shelter need to mobilize resources. जब आपने उसको अप्लाई करने जा रहे हैं तो अब उसमें बेसिकली जो आपका रिजल्ट सामने आ रहा है वो ये है कि जो शेल्टर में ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही हैं या वहाँ रिस्पॉन्स कर रही हैं, दे नीड टू मोबिलाइज रिसोर्सेज। ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग इन वॉश प्लान न्यू वाटर सोर्सेज टू प्रोड्यूस एडिशनल 35,000 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे इन कैंप। सो एक तरफ शेल्टर पे काम करने वाली अदारों के लिए ये मैसेज कन्वे हो रहा है कि आप मजीद शेल्टर प्रोवाइड करें, क्योंकि 1000 बंदा ज्यादा है वहां पे कैंप में और उनको शेल्टर का भी इशू है। आपने देखा कि जब हमने इंफॉर्मेशन स्टार्ट की तो हमारा फोकस सिर्फ वॉश के ऊपर था, हमारा फोकस सिर्फ पानी के ऊपर था, लेकिन जब हम उसको प्रोसेस करके एक्सपीरियंस किया तो हमें ये अंदाजा हुआ क्योंकि 1000 बंदा उस कैंप में ज्यादा है, तो एक तरफ तो पानी का मसला है लेकिन दूसरी तरफ शेल्टर का भी मसला है। सो जब हमने उसको फाइनल करके उसको आगे अप्लाई किया या शेयर किया तो ये बहुत सारे अदारों के लिए एक फायदेमंद इंफॉर्मेशन हो गई, जिसमें ये सामने आ रहा है कि आपको शेल्टर की भी वहाँ पे जरूरत है। सो वहाँ पे रिसोर्सेज मोबिलाइज करके शेल्टर प्रोवाइड किया जाए और साथ साथ जो एडिशनल पानी चाहिए 35,000 लीटर ऑफ द डे उसकी वो रिक्वायरमेंट भी फुलफिल की जाए। So that this is why information management is very important. अगर आपने वही इंफॉर्मेशन जो स्टेप ए पे मिली थी वो एज इट इज आगे प्रोवाइड कर देते तो सिचुएशन एग्जैक्ट सिचुएशन का एनालिसिस नहीं हो पाता और लोगों को अंदाजा ना हो पाता कि बेसिकली उसकी रिक्वायरमेंट्स वहाँ पे क्या है, क्या चीज मौजूद है और कितनी कम है और उसकी कितनी मजीद जरूरत। रूल्स क्या है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के? प्रायोरिटीज, फोकस ऑन एसेंशियल डाटा। इधर उधर की जो भी आप डाटा बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप मार्केट में जाएं शॉपिंग करने तो आपके पास बहुत सारे ब्रांड्स हैं और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज हैं और आपको समझ नहीं आ रहा होता कि आप किस ऑप्शन को एक्सेस करें। आपके पास लिमिटेड रिसोर्सेज हैं लेकिन आपका दिल चाह रहा है कि जितने भी शॉप्स में जो भी अच्छा अच्छा है वो हम एज मच एज पॉसिबल हम ले सकें। सो इन्फॉर्मेशन भी बिल्कुल इसी तरह से है। आप जब फील्ड में जाते हैं तो बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन अब आपने कैसे अपनी प्रायोरिटीज को आइडेंटिफाई किया हुआ है, यानी आपकी ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज क्या है, आपने किस फील्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना है और सिर्फ आपने कौन सा एसेंशियल डाटा है जिसके ऊपर आपने फोकस करना है। कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट, ये फॉर्मूला है बेसिकली जो कि हर किसी को कम्युनिकेट किया जाता है कि बेसिक एंड फास्ट इंफॉर्मेशन हो। परफेक्शन इज एनिमी ऑफ गुड। कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि जो इन्फॉर्मेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं दैट इज परफेक्ट 100% इट इज करेक्ट। सो हमेशा एरर्स के चांसेस होते हैं। सो हमें इस चीज को देखना है कि हमने कितना उसको सिंपल एंड शॉर्ट रखना है और हमने स्टैंडर्ड्स जो कि हमने खुद आइडेंटिफाई किए हुए हैं क्लस्टर्स के थ्रू, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के थ्रू, हमने उन स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना है।
इसमें सबसे ज्यादा जो चैलेंज है वो लोकल सिविल सोसाइटी के लिए आता है कि वो कैसे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करें। तो इसका बेसिक रोल प्रिपेयरनेस के टाइम पे होता है कि प्रिपेयरनेस के टाइम पे आप एक अदारे की जिम्मेदारी है कि वो एक्सेस करे जो बेसिकली क्लस्टर फोकल पॉइंट्स होते हैं, या जिस तरीके से PHF का प्लेटफॉर्म है, NHN का प्लेटफॉर्म है, और उनसे इस चीज को उनको रिक्वेस्ट करे कि वो फैसिलिटेट करे। स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स हैं, स्टैंडर्ड टेम्पलेट्स हैं, स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन गैदरिंग के तरीके हैं, वो आपको प्रिपेयरनेस के टाइम पे वो ना सिर्फ प्रोवाइड करें बल्कि उस पर आपकी ट्रेनिंग्स भी करवाएं, कैपेसिटी एनहांसमेंट भी करें, ताकि जब आप इमरजेंसी की सिचुएशन में आप उनका इस्तेमाल जानते हो और उसकी बेस पे आप इंफॉर्मेशन गैदर कर सकें। यूज, रिव्यू एंड इम्प्रूव, दिस इज रियली वेरी मच इम्पॉर्टेंट। सो आपके पास कोई भी ऐसा मैजिक नहीं है, ऐसा सिस्टम नहीं है, ना ही आप देयर इज नो ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम इन द इनिशियल वर्जन। रिव्यू टू इम्प्रूव इज द ओनली वे टू क्रिएट समथिंग फंक्शनल। आप ये नहीं कह सकते, जैसे मैंने पहले भी कहा, कि जो इन्फॉर्मेशन आपके पास है ये दैट इज परफेक्ट 100% करेक्ट। उसको बार बार रिव्यू करेंगे, हर दिन के हिसाब से इंफॉर्मेशन चेंज हो रही होगी, हर घंटे के हिसाब से इंफॉर्मेशन चेंज हो रही होगी। सो आपको वो मैकेनिज्म डेवलप करना है, वो सिस्टमैटिक अप्रोच, जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड पे बात की थी, आपको अडॉप्ट करना है, जिसमें आपने ये देखना है कि आपने कितने आवर्स के बाद, कितने दिन, कितने डेज में आपने आपके पास जो अवेलेबल डाटा उसको रिव्यू करना है, आपने उसको किस तरह से यूज करना है, और किस तरीके से विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने उसको इम्प्रूव करना है। सो जो टूल्स हम यूज करते हैं वो बेसिकली वही डाटा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, कलेक्ट, प्रोसेस, एनालाइज, शेयर, स्टोर। Information can be generated by anyone, shared with anyone, and acted on by anyone. But कैसे? ये नहीं है कि ये काम सिर्फ मैं ही कर सकती हूँ, या ये काम कोई भी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स है इसमें से कोई XYZ कर सकता है। ये हर कोई कर सकता है, लेकिन उसको सिर्फ उसकी नॉलेज होनी चाहिए कि उसने किस तरीके से उसको एक्सेस करना है और किस तरीके से, और वो ये बेसिक्स की इंफॉर्मेशन उसके पास हो। सो हम इसको समझेंगे। डाटा की कलेक्शन हुई, प्रोसेस होकर इंफॉर्मेशन हुआ, एनालाइज किया, कम्युनिकेट किया, शेयर किया, स्टोर भी किया। स्टोर तब किया ताकि वो आपके पास बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हो, सो दैट इन फ्यूचर जब आपके पास मजीद इंफॉर्मेशन आ रही है तो आप रेफर बैक कर सके उस इंफॉर्मेशन से जो आपने एक दिन, हफ्ता पहले या महीना पहले ली थी। लेकिन शेयरिंग इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट। आपको जितने स्टेक होल्डर्स के साथ आप अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे वो बेसिकली अल्टीमेटली जो उसका इम्पैक्ट बेनिफिशियरी को पड़ेगा। सो अपने पास, सिर्फ अपने अदारे के पास इंफॉर्मेशन रखने से आपको फायदा नहीं होगा। आप जितना मैं हमेशा जब भी कोई भी अपनी प्रेजेंटेशन होती है या कहीं पे भी बात करती हूँ तो मैं कहती हूँ हमारे लिए कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो दो एरियाज हैं जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं और हम कहते हैं कि मतलब ये कोई स्पेशलाइज्ड फील्ड या एरिया नहीं है। बट लेट मी शेयर विद यू दैट कोऑर्डिनेशन एंड कोलैबोरेशन ना सिर्फ स्पेशलाइज्ड एरिया है, लेकिन और इसके अगेंस्ट बाकी तमाम सेक्टर्स या बाकी तमाम जो एरियाज हैं, चाहे वो वॉश है, चाहे वो शेल्टर है, चाहे वो हेल्थ है, चाहे वो कोई भी आप सेक्शन ले लें, वो सब इसके ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। आप कोऑर्डिनेट सही टाइम पे, सही जगह पे, सही स्टेक होल्डर के साथ करेंगे और कोलैबोरेट करेंगे तो ही आप अल्टीमेटली बेनिफिट कर सकेंगे बेनिफिशरीज को। अब आप ये देख लें कि जब आपने डाटा कलेक्ट किया तो उसको कलेक्ट करने के लिए कौन सा टूल चाहिए आपको। स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म्स चाहिए, कम्युनिकेशन मीन्स चाहिए, ट्रेन्ड टीम्स चाहिए, और ये प्रिपेयरनेस के टाइम पे होगी। आप प्लीज एक्सेस करें कि कौन सी इस वक्त ऐसे स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्म्स हैं जो रीजनल लेवल पे, कंट्री लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे इस्तेमाल हो रहे हैं। उनको आप एक्सेस करें, उनको आप उनके ऊपर अपनी टीम्स को ट्रेन करें और अपने मीडियम्स पहले से आइडेंटिफाई करें कि इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी कौन सा वो रिलायबल मीडियम है जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन यूज करेगी। क्या वो व्हाट्सएप है, क्या वो ईमेल है, क्या वो कोई और मीडियम है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। आप वेबसाइट को प्रेफर कर रहे हैं, आप किस मीडियम को प्रेफर कर रहे हैं वो आप कम्युनिकेट कर दें पहले से ही अपने तमाम स्टेक होल्डर्स को कि इन केस ऑफ एनी डिजास्टर हम इस मीडियम के थ्रू आपको इतनी फ्रीक्वेंसी से इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। कंप्यूटराइज्ड सिस्टम इज बेटर, सो कोशिश करें कि आप लोगों को कंप्यूटराइज्ड सिस्टम पे ट्रेन करें जो आपकी टीम्स हैं, और स्टैंडर्डाइज्ड टेबल्स यूज करें, क्योंकि अगर आप पेपर उस पे
समटाइम्स जब आप फील्ड में जा रहे हैं तो आपको उस टाइम पे पेपर पे ही इंफॉर्मेशन लेनी है, लेकिन वापस आए उसी दिन वो इंफॉर्मेशन, वो डाटा आप अपने कंप्यूटर पे, अपने सिस्टम पे अपलोड कर दें। और ना सिर्फ अपलोड कर दें, उसको शेयर्ड उसमें रखें, ताकि ना सिर्फ वो आपके पास रहे, वो आपकी जो आइडेंटिफाइड टीम है वो सबके पास हो उसका एक्सेस, और उसके ऊपर अगर किसी के पास कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन आ रही है तो वो शेयर करते रहे। बेहतर तरीका जो है प्रेजेंट करने का, वो ग्राफिक्स है, वो मैप्स हैं, वो रिपोर्ट्स हैं, जो कि इन वन लुक आपका मैसेज कन्वे करते हैं। मीटिंग्स में आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, जो जैसे कि क्लस्टर मीटिंग्स होती हैं, मीडिया के थ्रू आप इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। जब ये याद रखिएगा, जब भी मीडिया के थ्रू आप इंफॉर्मेशन शेयर करें, सोर्स जरूर मेंशन करें, उसकी ऑथेंटिसिटी को इंश्योर करें, और ये भी इंश्योर करें कि मीडिया येलो जर्नलिज्म को देखते हुए उसमें प्लस माइनस ना करें इंफॉर्मेशन को। सो इसके लिए भी आपको बेसिकली प्रिपेयरनेस टाइम पे कुछ मीडिया हाउसेस के साथ या मीडिया रिपोर्टर्स के साथ एंगेज होना होगा, जिनके साथ आप अपना एक लॉन्ग टर्म एसोसिएशन रखेंगे, और जो आप पे ट्रस्ट कर सके और जिसपे आप ट्रस्ट कर सकें, और वेबसाइट्स पे आप इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। 3 जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के, बेसिक नीड है ये हमारी, ये बिल्कुल उसी तरीके से जैसे मैं इसकी एग्जांपल हमेशा ये देती होती हूँ, जैसे एक इंसान के लिए किसी दूसरे इंसान से बात करना एक बेसिक नीड होती है, वो अकेला तनहा नहीं रह सकता। सिमिलरली इंफॉर्मेशन भी बेसिक नीड है, और ये जनरेट वैल्यूएबल वेज में होती है। इसको वाइडली शेयर करना है और फ्रीली शेयर करना है। इसको लिमिटेड ऑडियंस तक रखने से और इसको फ्रीक्वेंटली ना शेयर करने से कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। यहाँ पे मैंने कुछ स्टेक होल्डर, मैंने बेसिकली 2-3 स्लाइड में ये चीज शेयर करने की कोशिश की है कि इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ स्टेक होल्डर्स ड्यूरिंग प्रिपेयरनेस टाइम पे उनकी क्या नीड्स हैं, देन रिस्पॉन्स फेज में, और फिर मैंने कुछ स्टेक होल्डर्स की नीड्स को भी सेपरेट किया। सो हम इनको 1 by 1 गो थ्रू कर लेते हैं। एनालाइज, ये अभी हम करंटली प्रिपेयरनेस फेज के टाइम पे देख रहे हैं कि हमारी कौन सी इंफॉर्मेशन नीड्स है। एनालाइज हैजर्ड्स एंड रिस्क्स, बिल्ड सिनेरियोज एंड डेवलप प्लानिंग असम्पशंस। अपने वर्किंग एरिया में जो आपके जहाँ पे भी आप लोग काम करें, आप एनालाइज करें वहाँ पे कौन से हैजर्ड्स एंड रिस्क पॉसिबल है, वहाँ पे सिनेरियोज बिल्ड करें, प्लानिंग करके, असम्पशन बेस्ड प्लानिंग करके आप पहले से रखें कि अगर कोई सिचुएशन इस लेवल तक आती है तो कितना नुकसान हो सकता है और उसके लिए कैसे हमने रिस्पॉन्स करना है। और आप बेसिकली अपने लेवल्स को कैटेगराइज करके वहाँ पे रखना है। Mapping of resources, inventory, available stocks, logistics, information, road, railways, airport, helipads, boats, etc., emergency relief center, community-based committees, information network. ये वो चीजें हैं जिनको आपके पास ये बिल्कुल अपडेटेड इन्फॉर्मेशन हो। आप इसको मंथली बेसिस पे लें, आप इसको क्वार्टरली बेसिस पे इन्फॉर्मेशन लें, लेकिन ये आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आपको ये भी पता हो कि आपके क्या रिसोर्सेज हैं, आपके पार्टनर्स, स्टेक होल्डर्स के क्या रिसोर्सेज हैं, और कहाँ आप एक दूसरे के लिए वैल्यू एडिशन हो सकते हैं, गवर्नमेंट को फैसिलिटेट कर सकते हैं। ट्रेनिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ स्काउट्स, रजाकार, सिविल डिफेंस, रेस्क्यू। ट्रेनिंग के टाइम पे आपका फोकस सिर्फ आपकी अपनी जो कमेटीज हैं या आपकी अपनी जो टीम्स हैं उन पे नहीं, लेकिन आपको मिक्स एंड मैच ग्रुप्स डेवलप करने की जरूरत है, जिसमें आपने, क्योंकि जो स्काउट्स की एक्सपर्टीज है वो आप किस तरीके से अपनी ऑर्गेनाइजेशन या अपनी कमेटीज या अपने टीम्स तक कन्वे कर सकते हैं, और इसी तरीके से जो आप लोगों की एक्सपर्टीज है किस तरह से वो आप स्काउट्स, रजाकार या सिविल डिफेंस और रेस्क्यू टीम्स तक पहुंचा सकते हैं। एलिवेशंस इंफॉर्मेशन मैप, ये आपके पास बिल्कुल अपडेटेड इंफॉर्मेशन होनी चाहिए अपने डिस्ट्रिक्ट की, अपने वर्किंग एरिया की। सोशियो इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पॉपुलेशन की, लिटरेसी, इकोनॉमिक एक्टिविटी के, आपकी पॉपुलेशन है कितनी, वहाँ पे लिटरेसी रेट क्या है, इकोनॉमी रेट क्या है, ये सारी चीजें आपके पास समटाइम्स गवर्नमेंट के थ्रू ये अवेलेबल होती है, समटाइम्स आपको गवर्नमेंट के थ्रू अवेलेबल नहीं भी होती है। तो आप किस तरीके से अपनी जो एनालिसिस के बाद अपनी प्लानिंग करेंगे, उसमें आप किस तरह से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, ये आपको प्लान बनाने की जरूरत है। सिक्योरिटी सिचुएशन ऑफ द एरिया, कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ द की स्टेक होल्डर्स, वहां पे जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं उनकी आपके पास कॉन्टैक्ट लिस्ट होनी चाहिए। अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रिपेयरनेस प्लान, कैपेसिटी बिल्डिंग, और इसके अलावा सीपी एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। आपके पास ये बेसिकली तमाम जो आपकी कंटीजेंसी प्लान्स हैं, आपके प्रिपेयरनेस प्लान्स हैं, इनकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। असेसमेंट टूल्स एंड मेथोडोलॉजी एंड रिपोर्टिंग टूल्स, ये आपके पास अपडेटेड होने चाहिए। सो ये वो इंफॉर्मेशन है जिसके लिए आपको खुद
स्ट्रगल भी करनी है, आपको खुद ये देखना है कि आपके पास एक सेक्शन, एक कौन सा ऐसी टीम है या ऐसा फोकल पर्सन है जिसके पास ये इंफॉर्मेशन और उसकी बेसिकली ड्यूटी हो कि वो इसको एक लिमिटेड एक मेंशन पीरियड के बाद अपडेट करता है। रिस्पांस फेज, अभी आप रिस्पांस फेज में देखेंगे बहुत सारी सिमिलरिटी है इंफॉर्मेशन की प्रिपेयरनेस फेज के साथ। मैपिंग डाटा कलेक्शन, अगर आपने प्रिपेयरनेस फेज में मैपिंग डाटा कलेक्शन की हुई है और जब आप रिस्पांस फेज में करेंगे तो आप उसको कंपेयर कर सकते हैं कि प्रिपेयरनेस टाइम पे आपके पास क्या सिचुएशन थी और अब आफ्टर डिजास्टर आपके पास क्या सिचुएशन है, और इसको विद एज एंड सेक्स डिसएग्रीगेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंडीशंस के साथ आपको शेयर करना चाहिए। इमीडिएट नीड्स एंड गैप्स एनालिसिस, आपने तब भी एनालिसिस किया था कि प्रिपेयरनेस टाइम पे क्या सिचुएशन है, क्या एनालिसिस आपके पास और क्या आपने प्लानिंग असम्पशंस किए थे। अब आपने उसके साथ कंपेयर करके देखना है कि ये सिचुएशन थी, अब हमने जब डाटा कलेक्ट किया हम नीचे गए हैं, हम वहीं पे हैं, हम किस लेवल पे हैं और हमारी नीड्स क्या है। लॉजिस्टिक सिचुएशन, रोड स्टेटस एंड मैप्स, जब आपके पास वो पहले प्रिपेयर्डनेस में इंफॉर्मेशन थी, अब आपके पास जब इंफॉर्मेशन आई तो आप ये एनालिसिस कर सकते हैं कि उस टाइम पे इन रोड्स की ये सिचुएशन थी, डिजास्टर के बाद ये सिचुएशन आई है। समटाइम ऐसा होता है कि वो रोड पहले से टूटी होती है और हम उसको डिजास्टर के उसमें ले जाते हैं और हम कह देते हैं कि ये जी जलजला आया तो उसकी वजह से हुई है, लेकिन वो शायद पहले से ही वैसे ही खस्ता हाल हो। Security situation of the area, information communication channels available and functional, human resource available including doctors, lady doctors, आपने already data collect किया हुआ है, आपको idea है कि आपके एरिया में कितना human resource available है और after disaster कितना human resource available है और मजीद कितना चाहिए। एड अराइव्ड इन पाइपलाइन, कितनी एड पहुंच चुकी है और कितनी पाइपलाइन में है। रिपोर्टिंग मैकेनिज्म्स, आपके पास टूल्स एंड मैकेनिज्म्स अगर पहले से अवेलेबल हैं तो आप उसी के ऊपर अपनी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे एंड आगे उसको प्रोसेस करेंगे। इमरजेंसी रिलीफ सेंटर इफ नॉट एस्टैब्लिश्ड अर्लियर, तो अगर पहले है तो ठीक है, नहीं है तो आपको फौरन उसके ऊपर काम करने की जरूरत है, गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करने की जरूरत है। कॉमन वेब पोर्टल, जैसे कि मैंने बोला कॉमन वेब पोर्टल की सख्त जरूरत है। एक अपना अलग से इंफॉर्मेशन अपने पास रखने से कोई नहीं है, और इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है इस वक्त NHN का डिजिटल रिसोर्स सेंटर, दैट इज बेसिकली अ कॉमन वेब पोर्टल, और वो इसी चीज को एज्यूम करके, लेकिन वो तब तक फायदेमंद नहीं होगा जब तक आप सब उसमें अपनी इंफॉर्मेशन चिप इन नहीं कर रहे होंगे। एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट नेटवर्क, यहाँ पे मैं स्टेक होल्डर्स के साथ आपको इसमें देख रही हूँ इन टेबल्स पे कि क्या है कॉन्टैक्ट लिस्ट ऑफ पार्टनर एंड अथॉरिटीज, यानी आप सबकी। इसके अलावा जेनेरिक गाइडेंस अप्लाइड टू द कॉन्टेक्स्ट के बेसिकली वहाँ पे क्या हमें क्या किस किस्म की गाइडेंस की जरूरत है। Gaps and needs analysis based on all partners' contributions and mapping support, meeting schedules and minutes, policy strategic documents, flow charts, dashboards, documents available in the country language to allow national partners full participation. So ये वो basic information है जो operational agencies की जरूरत होती है। Government department को contact list of partners and departments and nominated authorities, policy strategic documents, gaps and needs analysis based on all partners' contributions and mapping support, meeting schedule, minutes, dashboard, snapshot, who is doing what, where, when. 4W matrix very much important. Please इसको ना सिर्फ preparedness time पे बल्कि इसको emergency time इसकी अपनी एक अहमियत है और इसको updated रखा करें। Operational agencies and government departments के बाद हम ये देखेंगे challenges and risks. Accuracy and utility is a very big challenge कि जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है वो कितनी एक्यूरेट है और उसको किस तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा। उसमें बायस, पर्सनल बायसेस तो नहीं है कि मैं इस इलाके से ताल्लुक रखती हूँ तो मैं थोड़ा चीजों को एग्जैजरेट करके बता रही हूँ, या मैं शायद कुछ चीजों को कवर कर रही हूँ और मैं उसको शेयर ना कर रही हूँ। पर्सनल बायसेस उसमें नहीं आने चाहिए। इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड नहीं हो, इतनी ज्यादा भी इंफॉर्मेशन ना हो कि अगला बंदा कंफ्यूज ही हो जाए कि वो अभी जो 5 मिनट पहले इंफॉर्मेशन आई थी और अभी जो इंफॉर्मेशन आई है वो किसके ऊपर आगे प्लानिंग करें। इंक्रीज्ड एक्सपेक्टेशंस, और हमें अपनी इंफॉर्मेशन से एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ानी नहीं है लोगों की, कि हमें टू द पॉइंट एक्यूरेट और उसकी यूटिलिटी की बेस पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है ताकि उसका बेनिफिट हो सके। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राइवेसी, एथिक्स एंड सिक्योरिटी। आप जब भी कहीं से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करें, आपने वहाँ के जिन लोगों से कलेक्ट करें, आप उस चीज को इंश्योर करें कि आप
उनके नाम वगैरह या उनकी इंफॉर्मेशन को आप प्राइवेट रखेंगे। और एथिकल कोड्स, हम अक्सर देखते हैं आजकल एथिकल कोड्स को कोई फॉलो नहीं करता। एक जख्मी इंसान या बच्चे की पिक्चर हम आराम से हर प्लेटफॉर्म पे शेयर कर रहे होते हैं, एथिकली वो मना है, इसलिए क्योंकि आप शेयर कर रहे हैं लेकिन आपको नहीं पता आगे दिखने वाले इंसान पे वो कैसा इम्पैक्ट डाल रहा है। और सबसे इम्पोर्टेंट, जिस इंसान की पिक्चर आप शेयर कर रहे हैं, क्या वो विलिंग है, क्या वो चाहता है कि आप उसकी इस हालत में पिक्चर इस तरह से शेयर करें? तो एथिकली दिस इज रॉन्ग। सो हमें इस तरह की पिक्चर्स, इस तरह की इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन नहीं करनी चाहिए। एंड सिक्योरिटी को भी हमें मद्देनजर रखना है कि हमारी इंफॉर्मेशन कहीं गलत तौर पे इस्तेमाल ना होगी। रिकमेंडेशंस हैं जी, रिकग्नाइज इंफॉर्मेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस बंदे को आपने ट्रेन किया है उसकी इतनी अंदर इतनी सलाहियत, इतनी काबिलियत हो कि वो इंफॉर्मेशन को रिकग्नाइज कर सके। कम्युनिकेट एज बेसिक नीड, क्योंकि ये हम सब की जरूरत है, सो इसको जरूर कम्युनिकेट करें एंड शेयर करें। इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी, सबके लिए अवेलेबल हो, कैपेसिटी टू यूज, उसको ना सिर्फ अवेलेबल हो, अगले में इतनी कैपेसिटी भी हो कि वो उसको यूज कर सके। और एथिकल गाइडलाइंस को हमने फॉलो कर। ये कुछ की ह्यूमैनिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं, वेबसाइट्स हैं, या आपको ये डिटेल्स दी गई हैं जहां से आप एक्सेस कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को, जहां पे अपडेटेड इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है। जैसे कि ह्यूमैनिटेरियन वेब पोर्टल है, इसके अलावा गवर्नमेंट की वेबसाइट्स होती हैं, इसके अलावा 4W मैट्रिक्स हैं, फाइनेंशियल ट्रैकिंग सर्विस, एक्सपेंडिचर ट्रैकिंग है, ऑनलाइन प्रोजेक्ट सिस्टम्स हैं, सर्विस ऑफ सर्विस हैं, ह्यूमैनिटेरियन डैशबोर्ड्स हैं, स्नैपशॉट्स हैं, UC ranking systems, district profile, mapping products, mapping service to humanitarian community, provision of standardized baselines and GIS data, and NHN ka digital resource center. Thank you, and over to you, Humayun. Thank you, Sana Zulfikar. आपका बहुत शुक्रिया for a comprehensive, detailed presentation on this important topic with examples. अभी हमारे पास कुछ वक्त बाकी है। अगर कोई पार्टिसिपेंट्स किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हैंड रेज कर लें या चैट बॉक्स में लिख लें। चैट बॉक्स में रहीम मारी साहब लिख रहे हैं, कम्युनिटी बेस्ड डिजास्टर DRR प्लान्स विद डिस्ट्रिक्ट लेवल इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल्स विल आल्सो पार्ट ऑफ प्रिपरेटरी फेज। ऑफ कोर्स दिस इज, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग रहीम मारी साहब। इसके अलावा किसी और का कोई क्वेश्चन हो, अगर किसी का कोई और क्वेश्चन नहीं है तो हम इस वेबिनार को आज यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच सना जुल्फिकार, आपने हमें टाइम निकाला और हमें फैसिलिटेट किया इस वेबिनार के लिए। आप सबका थैंक यू कि आप सब लोगों ने टाइम निकाल के ज्वाइन किया, इस इम्पोर्टेंट वेबिनार को लिसन किया और इंशाल्लाह इससे इसकी इंफॉर्मेशन से आइंदा फ़ायदा भी हासिल करेंगे। और बहुत शुक्रिया आप सबका, और थैंक यू वेरी मच, और अल्लाह हाफिज़।